Start, beta. My name is Saharsh. I am studying in science line. I am taking I wish to take computer science in future because I am more interested and there is more scope in it. Okay, Preet. My name is Preet Chetan Bhavsar. I want to be a software developer and this is my passion and hobby. Fiza. Yes, sir. My name is Contractor Fiza, and I just started my 11th science studies because one of the strong reason is there's a lot of shortage of medical staff right this current period. So I want to serve them and want to help them as a medical staff. Shaheen. Hi everyone, myself Shaheen Bansiwala. The career I want to choose ahead are two options that one could be nursing and one could be pharmacy. They both are really helpful for future. Okay. Beta, you are not well? Your voice Sir, is... cough. Oh, yes. Hi, Yash. Sir, my name is Jadon Yash. I want to be a mechanical engineer because I'm interested in it. Okay. Yash Kadam. My name is Yash Kalam. I want to become a bee farm. All right, beta. Angel Samaria. Hello, my name is Angel Samaria. I want to become an IAS officer because it is my hobby and I want to make my own ability. Oh. Milin. Good morning, sir. My name is Milind Samanta. I want to become a software engineer because I like to do coding. All right. Shifa. Shifa, Hakim, beta, you're not audible. Cezanne. Yes, sir. My name is Fateka Sizan Mehdi. I want to be an electrical engineer because I am interested in it. Okay. Kunj. Hello sir, my name is Kunj Panchal. I want to become a software engineer because I like doing stuff with. Isha Faruqi. Isha, na beta? Yes, sir. My name is Isha Faruqi and my aim is to learn environmental science. Okay. Vraj. Good morning, sir. My name is Vraj and I am 16 years old and I wanted to become an AI engineer because I love and study about developing systems. Wow. Aman Ali, Motiwala. Yes, sir. Good morning, all of you. Myself, Motiwala Aman Ali. I have selected science stream with Group A. My dream is to become an engineer and go abroad. Thank you. Okay. Preet Bhavsar. Yes, sir. My name is Preet Chetan Bhavsar and I want to be a software developer because I like coding and I like to make software and applications. Manav Kapadia. So my name is Mano Kapade and I want to become mechatronics engineer with specialization in robotics because I love to make robot. Oh, wow. Shreya. Sir, my name is Shreya Panchal. I want to be an architecture because I want to utilize my drawing skills somewhere and I'm pretty interested in this line. And I am very good at drawing also. Okay, that I know. Vishal. Hello sir, I am Vishal Patak and I am interested in two fields, electrical engineering and mechanical engineering. But why? Because I like it. Vatsal.
Sir, my name is Vatsal Rabari. I want to become a software engineer because I like to develop some applications or websites. Okay, beta. Sanya? Good morning, sir. My name is Mansuri Sanya. I want to become a doctor because it's mine and my father's dream. Okay, beta. Om? So my name is Om Patel. I want to become a software engineer because the field is very broad and salary is also good. Oh, wow. Dev? First of all, good morning, sir, and my dear classmates. Myself, Dev Hande, and I want to become a programmer in future. This is my dream because I want to make some really good revolutions in future in AI. Okay, very good, Dev. Kids, please wish good morning to your classmates also. Okay, because ultimately you will be studying with them. Chalo, Rudra? Hi everyone, good morning sir and good morning my classmates. I am studying in 11th science and I want to become a software engineer in future because I like coding and computer programming. Wow, wow. Rudra, क्या बात है? Nikita? Good morning, sir, and my dear classmates. I want to become a software engineer as I am interested in coding. Much confident voice. Swayam? Good morning, sir, and good morning, our classmates. My name is Gohil Swayam, and I like to become a technical engineer because I love machines. Wow, very good. Okay. Am I missing with Suhani? Yes, sir. Good morning to all. My dream is to become an airline pilot because I want to be a bird in a sky. Oh, yes, कोई तो आया मेरे फील्ड का, क्या बात है? Yo, Vrutant. Good morning, sir. My name is Vrutant Kale and I want to be a computer engineer because I like doing coding in computer. Okay. Misbah Pathan. Good morning, sir. Good morning, sir. My name is Misbah Pathan, and I want to be a doctor because my mom dad want that I become a doctor. Okay. But what you want, beta? Fashion designing. Huh. Then you have to be a fashion designer. You know? If you want, I can have healthy discussion with your parents later on at any stage. Okay. Next is Samaya Sheikh. Samaya Sheikh. चिराग सर, मैंने इनको वेटिंग में डाला है, ठीक है? आप जरा देख लो ना. हेतवी. Okay, sir. Hi, good morning. My name is Hetvi Patel and I want to become a doctor because I am very much interested in it. Oh, wow. क्या बात है. Okay. Diwan Ruhan. Good morning, everyone. My name is Diwan Ruhan. I want to be a doctor to help people. Wow, very good. क्या बात है. तुम्हारे क्लासमेट्स को जल से पड़ गए. मतलब अपना एक फ्री में डॉक्टर है, ध्यान में रखना सब लोग. 2-3 डॉक्टर बनने के लिए थे वैसे. Am I missing anyone? Please, कोई बाकी रह गया हो तो one by one, please. Yes, yes. Yes, sir. So myself, Riyan Sayed. Good morning to all of you. Sir, I want to become an automobile engineer because I love that cars, supercars. My thought is to make a supercar which can run on Indian roads also. Okay. Okay. Right. Anyone else left out? Sir. हाँ बेटा. Good morning, sir, and my classmate. Myself, Preet Mistry, and I want to become a chemical engineer because I love chemistry. Oh, wow. ठीक है. Anyone else? Next. Okay. Good. Kids, सबसे पहले पेरेंट्स की सुनना बंद करो. नंबर 1 रूल. बराबर है? ठीक है. अगर आपके पेरेंट्स ये सुन रहे हैं तो उनको बोलो इधर आओ, ये देखो सर क्या बोल रहे हैं. ठीक है. बराबर है? Be whatever you want to be.
you know, you are the pilot, you are the architect of your life. Okay, don't be something because right now, you know, I mean, I am not against biology. Okay, I am a math teacher. For me, you all are my children. Okay, because I'm your captain. Okay, so in one team, you know, there are some batsmen, there are some bowlers. You can say maths, bio, like that. So being a captain, I'll tell you, don't be, you know, don't seek the opportunities. Okay, this time, this is, you know, which virus का नाम क्या था वो आज अभी जो चल रहा है मार्केट में? म्यूकोमाइकोसिस. ओ वो तो बहुत एडवांस है, इतना तो मुझे बोलना भी नहीं आएगा. Okay, हाँ, तो mucormycosis and you know this red, yellow, and various colors of fungus. These all things are not. But what I want to say is, right now this COVID is going on, so I want to be a doctor because in future there will be a lot of opportunity, you know. And if something has been changed, oh, नई company बन रही है, तो I want to be a mechanical engineer. Those type of thinking should not be there. Okay, your thinking should be like this. I am, you know, remaining happy by doing this. Okay, whatever the skills God has given you. जैसे कि I think श्रेया ने बोला था. Okay, you know, you identify your talent, you identify your skills. Okay, right now though, it's only important thing is whether it's maths or a bio. Okay, that much important thing is required. But ये जो आपने dream है ना, उसको थोड़ा सा अभी बहुत time है बाकी 2 + 2 + 3 more years are there. Okay, new education policy पे हम नहीं आ रहे हैं. Let me tell you. So आपको ये 2 साल में कई बार मतलब ऐसा होता है कि you know dream, goals, destination सब change होते रहता है. जैसे many times I have seen, I seen one child last year. Initially he wanted to be a mechanical engineer. Then he said no. I want to be a good, you know, I want to go in journalism. फिर उसको लगा नहीं. I want to be a sound engineer. Okay, and at last he went in civil engineering. So I asked him that you know in the month of June you wanted to be this, August पे ये थे, December में ये था, 12 start हुआ तब तुम्हारा ये goal था. At last what he said was, अरे सर सारे friends civil में जा रहे थे तो मैं भी civil में चला गया. So इसीलिए कह रहा हूँ goals आपके मुझे बहुत अच्छा लगा. सारे बच्चों के खुद के goal है. You know, आपने खुद से कुछ decide किया है कि मुझे ये बनना है. Good, very good, very impressive. Okay, come on, clap for yourself. Yes, nice one. So kids, अब जब हमने साइंस लाइन ली है, बराबर है, तो एक बात याद रहे, we don't have to do any compromise with our life. For example, if you are a very good artist and you love sketching, drawing, keep doing. If you are a very good dancer and dancing आपकी hobby है, करते रहो. ठीक है, if you are a good gamer, आपको मोबाइल में गेम खेलना अच्छा लगता है, करते रहो. But yeah, मतलब you know, you have to manage time. Okay, you are a very good sports person, you are a cricket player. Yes, studies के साथ sports is a superb combination. खेलते रहो, जितना खेल सकते हो, बराबर है. It is not like that कि मैंने 11th and 12th science लिया है तो मुझे ये इतने compromises करने पड़ेंगे. नहीं, you know, कई बार मान लो कि हमें खेलना बहुत पसंद है, तो कई बार क्या होता है, खाने का टाइम लंच स्किप हो जाता है, हम बहुत खेलने में बिजी होते हैं, तो या तो लेट हो जाता है कि नहीं, बराबर है. बट उससे हमें मतलब अल्टीमेटली क्या कुछ नुकसान होता है? नहीं, we get that eternal happiness, and that's what you know is very important. जो भी करो ना, there has to be fun in it, बराबर है. Okay kids, now some of you might have taken biology and some of you would have taken maths, right? Biology के students जो है उनको भी maths तो पढ़ना ही है. हाँ, याद रहे ये decision maths लेना है क्योंकि मुझे maths पसंद है, bio लेना है क्योंकि I hate maths. No, don't do that mistake. Okay, maths से तो तुम्हें प्यार करना ही है. Okay, I have seen in past, now they are very famous doctors. Okay, जब ये maths bio का option आया था ना, तो I had to convince one of my you know very, you can say, dear student. She wanted to
go with biology. Her goal was to be a doctor. She was very clear, but she was so much, you can say, in grief, or she was in pain because she has to leave. She was supposed to leave maths. So I told her, beta, it's okay, because maths was her favorite subject, but her dream was to be a doctor. So I told her, it's okay, maths तो आएगा ही आएगा, physics जब आप करोगे ना तो. So कभी भी decision लेते वक्त ये नहीं decision होना चाहिए, I hate maths, that's why let me take bio. No, then you will be in a big trouble. Okay, maths से तो प्यार आपको करते ही रहना है, शायद मैंने आपको 10th standard में भी बोला था, you know, but आपका जो, अगर आप bio लेते हो ना, तो आपका maths और अच्छा होना चाहिए, समझे आप? Okay, next thing is, आज मैं आपको थोड़ा बहुत मैथ्स सिखाना शुरू कर ही दूंगा. ओके, सबने अपने अपने बुक्स ले लिए हैं. अब जितना फिजिक्स में, फिजिक्स में जितना मैथ्स चाहिए ना आपको, थोड़ा बेसिक, वो मैं आपको सिखा देता हूँ. बट बच्चा लोग, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि पता है, साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस स्टूडेंट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स, आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो? See kids, मैंने देखा, मतलब I have been working with, I started my journey from DRM in school, then I went to Shaishav school, then I went to Navrachna school, then I was with Navrachna International. Okay, after that I was for a couple of months I was with Bhavans, Mother Schools, BAPS, Treehouse. Okay, I have worked with these many schools, and in this 21st year, in 20 years of teaching, I have observed, science students has that extra spark in them. They are more investigative. They have a very good tolerance power, highly disciplined, no mood swings at all, very, very productive at their work. But there are, some defined basic qualities. अगर 12th साइंस पास आउट बंदा है ना, मतलब उसके अंदर कुछ क्वालिटीज तो बाय डिफॉल्ट होती है. ठीक है, तो साइंस जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा माइंड कैसा होना चाहिए? इट मस्ट नॉट बी द एब्सॉर्बिंग माइंड, बट इट मस्ट बी अ क्यूरियस माइंड. ओके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं. अच्छा, अगर कोई चीज हमने सीख भी ली तो भी हमारे खुद के क्वेश्चंस होने चाहिए, खुद के नोट्स, एंड एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन. वो तो हम आपको सब करना सिखाएंगे ही, बराबर है? चलो, आज मैं आपको इसी कंटेक्स्ट में मैथ्स की शुरुआत करते हैं थोड़ी देर, बराबर है? आर यू रेडी? यस सर. Yes, sir. यस सर. ओए, थोड़ी जोश वाली आवाज सुनाओ यार, कम ऑन, आर यू रेडी? यस सर. चलो, राइट डाउन टाइप्स ऑफ एंगल. वैसे मैं नॉर्मली पहले क्लास में लिखवाता नहीं हूं, बट आज लिखवा रहा हूं. ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल. बट चलो, कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? Yes, sir. यस. सी किड्स, जब हम छोटे छोटे थे, ओके, मतलब एक साल पहले नहीं, 1-2 महीने पहले, बराबर, तो हम पिज्जा का इतना टुकड़ा खाते थे खाली. ओहो, मेरी ड्राइंग स्किल के बारे में थोड़ा बता दूं. आई एम गुड एट ड्राइंग अमीबा. ओके, मैंने सर्कल बनाया है. ओके, एंड ये हमें सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में पिज्जा का इतना ही टुकड़ा खाना मिलता था. ठीक है, हमारी दुनिया इतनी रहती थी. ओके, अब मैं आपको लेके आ रहा हूं बड़ी दुनिया में. ओके, बड़ा पिक्चर देखना है. ओके, और ये रहा वो बड़ा पिक्चर. एंगल कभी 90 डिग्री तक नहीं होता. एंगल कितना होता है? कमॉन बोलते रहो. 360. शाबाश, शाबाश. ओके, तुम्हें कैसे पता चला 360 डिग्री गलत आंसर है? ओके, एंगल 1000 डिग्री का भी हो सकता है, एंगल 10,000 डिग्री का भी हो सकता है. ओके, आप क्या सोचते पता है? ये राउंड घूम गया, 360 हो गया, अभी ये 1000 डिग्री कैसे होगा? ओके, आई विल एक्सप्लेन यू. सी किड्स, चलो, रेडी? ओके, बोलो मेरे साथ. 90, 90, 180, 180, 270,
270. 70. 360. 360. 360 plus 90, 450. 450. 450. 540. 540. बोलो बोलो बोलो, और 90 करो, 630. 630. 720 720. और 1080. समझ में आ रहा है? ओके, Yes, sir. घूमोगे ना एंगल उतना उतना बढ़ता जाएगा. इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है. चलो फिर से आगे बढ़ते हैं. एंगल दो टाइप के होते हैं बच्चा लोग, पॉजिटिव, नेगेटिव. ठीक है, अब जरा देखना. हाँ, फिर से ये हुआ 90, 180, 270, 360. बराबर. ओके, फिर से करता हूं. 90, 180, 270, 360. व्रज परमार किस डायरेक्शन में गया बेटा? Yes, sir. मैं कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा था? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Yes, sir. कौन? ओके, किड्स में किस डायरेक्शन में गया था ये? Anti-clockwise. क्लॉकवाइज में आपका एंगल जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव रहता है. Positive. ओके, और अगर देखो मैं क्लॉकवाइज घूमता हूँ, बराबर, ये सारी बातें हमें कभी पता थी ही नहीं. ओके, चलो अब मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ. बराबर, देखो -90, -180, -270, -360. पता चल रहा है? यहाँ -360 हुआ. Yes, sir. तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मेरा एंगल क्या होगा? Negative. बात समझ में आई सबको? Yes. अब जब आप फिजिक्स पढ़ते हो ना चिल्ड्रन, तो मैथ्स जो है वो ऑलमोस्ट पूरा 11th का एंड थोड़ा 12th का मैथ्स आप यूज करते हो, यू नो. तो अब जब मुझे मैथ्स ही नहीं पता है, बराबर है, तो उसको यूज कैसे करेंगे? मतलब यूज करने का जो तरीका है, अगर वो मेरा अच्छा नहीं होगा तो फिर मुझे फिजिक्स ऐसा लगेगा बहुत हॉरिबल सब्जेक्ट है यार, फिजिक्स से डर लगेगा. ओके, तो थोड़े बहुत मैथ्स के कंसेप्ट सॉलिड होंगे ना तो फिजिक्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा. बराबर है. चलो आगे बढ़ते. एंगल हमने जो पढ़ा था ना बच्चा लोग, वो ये सीखा था. देखो अब भी एक नया टेबल बनाना मेरे साथ. ओके, देखो ये किड्स आपने सीखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री. ओ ओ ओ उसके पहले क्या था? 45. डिग्री. शाबाश शाबाश. 60 डिग्री एंड 90 डिग्री सीखा था हमने. बराबर. ओके. Yes. हाँ, चलो अब हमें एंगल, ये एंगल की कोई वैल्यू ही नहीं है, समझे आप? बराबर है. 30 डिग्री, 45 डिग्री, डिग्रीज आर नो मोर इन द ट्रेंड, यू नो. फैशन में मतलब मार्केट में चलता है रेडियन, समझे? जैसे रुपीस एंड डॉलर, कौन स्ट्रॉन्ग? और मार्केट में चलता कौन है? Dollar. ओके, सेम वे ऐसा है. डिग्री के कंपैरिजन में रेडियन ज्यादा प्रेफर किया जाता है. रेडियन इज द एक्चुअल मेजर ऑफ एंगल, समझे ना आप? बराबर है. ठीक है, अगर तुम गांव में जाके पूछोगे मतलब मेरी हाइट कितनी, तो वो बोलेगा तुम होंगे, यू नो, वो उनका कोई गांव का मेजरमेंट सुनाएंगे. बराबर है. अपने यूनिट्स के गांव के मेजरमेंट कभी सुने हैं? बीघा, वार, गुठा. Yes, sir. यस. ओके, अब हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कि अच्छा हमें कौन सा समझ में आए? स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मतलब मीटर, सेंटीमीटर, you know. So you will learn all these things in detail in MKS and CGS system in physics. But before, write down angle in radian. देखो x डिग्री दिया हो ना, into pi upon 180 करने का, क्या? into pi upon 180, तो आपका एंगल आ जाएगा रेडियन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री into pi by 180. चलो 36 क्या आया मेरा आंसर? पाई बाय 6 आया. Yes. चलो रेडी नाउ स्टार्ट. 45 into pi by 180 is equals to
ओ छोटा मोटा कैलकुलेशन मत करो, 5 5 का ऐसा सब मत करो, 45 4 जा उड़ाओ सीधा, 5/4, समझे? सब मेरे साथ में ना? Yes, sir. 60। दीवान रूहान, वीडियो बंद होगा बेटा तो मैं निकाल दूंगा मीटिंग से। सिक्सटी इंटू पाई बाई 180, Pi by 3. Pi by Pi by 3. शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश, क्या बात है। 90, Pi by 2. Pi by Pi by 2. वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड, मजा आ गई। 90 के बाद आया 120, देर लगा दी। 62 जा 63 जा, बोलो। 2 pi by 3, शाबाश। ओके 120 के बाद 135, देखो मैं बताता हूँ, 45 3 जा 45 4 जा, ओके 3 pi upon शाबाश। 3 पाई बाई 4, चलो 135 के बाद आया 150, 5 pi upon 3. 5 pi upon 5 pi upon 3. 3. 6. 6. 6 is the correct answer। 5 pi upon 6। क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ बच्चा लोग? No, sir. ओके चलो चलो मेरे साथ में, अगर मैं थोड़ा आगे निकल गया हूं तो चलो साथ में आ जाओ। आ गए सब साथ में? Yes, sir. ओके चलो 150 के बाद ले लो 180, pi upon 1. Pi. 180 बोले तो Pi. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके फिर आएगा रेडी 210, 225, 240, चलो 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 चलो, एंड उसके बाद 270, 210 का Seven pi upon 6. 7 pi upon 6. 7 pi upon 5 by 6, वेरी गुड। 225 का 45 5 जा 225, फोर्टी फाइव 4 जा 180, 5 पाई बाई 4 बराबर है मेरा। 4 pi upon 3. 5 पाई अपॉन, और यस 240 का क्या? 4 pi upon 3. 4 pi upon 3. शाबाश शाबाश। 270 का 3 पाई अपॉन 3 pi upon 2. नो 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 3 पाई बाई 2, 3 pi by 2. यस 3 पाई अपॉन 2, करेक्ट। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 270 के बाद आया 300, 315, 330 एंड 360, चलो पूरा करो इतना। 5 pi upon 3. हाँ बराबर बोला, बराबर बोला। Pi upon 4. 7 pi upon 4. 7 pi. 7 pi upon 4. ओके 11 pi upon 6. 11 pi upon 6. चलो बना दिया सबने? Yes. Yes, sir.
ये एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes. Yes. ठीक है, चलो अब इसके ऊपर काम करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके किड्स, आप खुद ही मेजर करके मुझे बताओ। ओके, ये इतना एंगल कितना होगा? चलो ये कितना हुआ? 30 डिग्री बोलो, पूरा बोलो, यूनिट के साथ। 30 डिग्री। ओके, 60 कितना हुआ? 45 डिग्री। एंड ये यहाँ पे था 0 डिग्री, बराबर? Yes. हाँ, और ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब आप जरा समझना, भावनाओं को समझना, ये और ये उनके बीच में, चलो ये कितना होगा? 120 135 135। ये अब फिर से भावना को समझना, इतना और अब ये कितना हो गया? 180। वेरी गुड, क्या बात है, सारे जीनियस लिए मैंने। ओके, फिर 225 फिर 250 240 फिर 270 बोलो 270 360 ओ मेरी गलती होगी, सॉरी 180 के बाद, हाँ अब बोलो फिर से 210 शाबाश, फिर 225 25 फिर 240 240 275 270 285 300 300 and 350 330 and 360 क्या हो, तो ये बन गया वापस 360। चलो कि अब जरा समझते हैं कि हमने जब रेडियन में निकाला ना एंगल, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई। किसी के माइक में बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? अमान मोती वाले तुम थे वो? नाउ अब हमने सब कुछ रेडियन में निकाल लिया, बस चलो अब इनकी रेडियन वैल्यू लिखते हैं। 30 डिग्री बोले तो देखो 30 डिग्री, अब डिग्री बोलने की आदत छोड़ दो, ठीक है? चलो बोलो ये कितना हुआ? कम ऑन, 5/6 ये 5/4 5/3 गर्ल्स की आवाज कम आ रही है? 11/5 ओके दोस्तों, अब है ना, मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या, बराबर है? देखना, अगर मैं 90 डिग्री बोलूं तो ये हुआ, और अगर मैं π/2 बोलूं तो भी ये हुआ, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? कोई बोले कि मेरा वेट 50 किलो है, या वो बोले मेरा वेट 50,000 ग्राम है, क्या फर्क पड़ा? ओ बराबर बोला मैंने क्या? एक ही बात हुई ना? यस ठीक है। कोई बोले कि मेरा वेट 5 किलो है, और वो ऐसा बोले कि मेरा वेट 5,000 ग्राम है, बात तो एक ही है, बट यहाँ पे बात में फर्क है, वो दिखने में आना चाहिए, बराबर है? चलो
शुरू समझेंगे कैसे, बराबर है। तो ये फर्क समझाने के लिए मुझे आपको देखो, अभी तो आप क्या है, जस्ट रेडियन से फेमिलियर हुए। तुम्हें वो डायलॉग सुना है, एक चुटकी सिंदूर का क्या था, ऐसा कुछ था, बाबूलाल ऐसा, मोतीलाल ऐसा कुछ था, नाम भूल गया, डायलॉग क्या था, याद कराओ ना मेरे को, किसी को याद हो शायद। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, ऐसा कुछ था ना, किसी ने शायद सुना, क्या था? महेश बाबू। हाँ, वो मेरे को एक बार कोई बोल के दिखाओ ना यार, जल्दी, मैं भूल गया डायलॉग। रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। अरे वाह, हाँ, कौन था ये? फिजा। यस, फिजा। हाँ, तो फिजा बेटा, एक रेडियन की कीमत तुम क्या जानो। ठीक है, ये मेरा डायलॉग है। चलो, तो अभी अपने को है ना, यही नहीं पता रेडियन बड़ा कि डिग्री बड़ा, क्वेश्चन ये है मेरा। ठीक है, ये तो कर दिया कि 30 डिग्री को पाई बाय 6 बोल सकते हैं, 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 बोल सकते हैं, है ना। चलो, तो अब हमें समझनी है एक रेडियन की कीमत, बराबर। ओके, तो देखो दोस्तों, मैं आपको उतना डेप्थ में नहीं ले जाता हूं, बराबर है, बट आपको बता देता हूं कि एक रेडियन की कीमत अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे ये साइन का मतलब अप्रोक्सीमेटली, बराबर है। जब मैथ्स के स्टूडेंट जो होंगे ना, वो ये एक रेडियन की कीमत 57 डिग्री कैसे होती है वहां जाएंगे। बायोलॉजी को खाली इतना ही ध्यान रखना है कि एक रेडियन 57 डिग्री के बराबर होता है। ओके, चलो अब बताओ, एक डिग्री बड़ा कि एक रेडियन बड़ा? एक रेडियन। Obviously एक रेडियन बड़ा। एक ग्राम बड़ा या एक किलोग्राम बड़ा? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। यस यस, क्यों? क्योंकि किलो एक्स्ट्रा आ गया है ना, वो तो खाली ग्राम है, ये तो किलोग्राम है ना। मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, मीटर। मीटर। ओके, नेवर रिलाई ऑन, अगर साइंस स्टूडेंट बनना है ना, तो नेवर रिलाई ऑन योर टीचर। ठीक है, अपना थिंकिंग यूज करो। सो एक रेडियन बड़ा, बराबर है। अब ये देखो, ये सब टर्म्स आती कैसे है, तो 10th स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा था। ये वाला डायलॉग याद है ना, मेरे पास माँ है, फोर्स इक्वल टू माँ, बराबर। चलो, M फॉर मास। E फॉर acceleration. Very good. What is the unit of force? फोर्स का यूनिट क्या? नहीं पढ़ा था ये? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हाँ, न्यूटन पढ़ा था कि नहीं? यस, न्यूटन पढ़ा था ना। ओके, मास का यूनिट क्या? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या? मीटर पर सेकंड। तो हम एक न्यूटन कैसे डिफाइन करते थे, याद है आपको? The amount of force required to produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg is known as 1 Newton force, बराबर है। तो ऐसे ही हमने 10th स्टैंडर्ड में ये एक फॉर्मूला पढ़ी थी, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू पाई आर थीटा अपॉन 180। ओके, सी साइंस स्टूडेंट्स का यूनिट सर्कल जो है वो उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहता है 2 साल के लिए। ठीक है, तो अगर इसमें लेंथ ऑफ द आर्क अगर आप 1 कर दो, ओके, और सर्कल का रेडियस आप 1 कर दो, मतलब पाई इंटू 1 थीटा अपॉन 180। तो ये जो थीटा आता है ना बच्चा लोग, 180 अपॉन पाई करके, ये आता है कितना? 1 रेडियन, बराबर। और वो 1 रेडियन मतलब कितना? 1 रेडियन मतलब कितना? 57 डिग्री। देखो, ये रेडियस कितना? 1 किलो का रेडियस। ओके, और अब लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेंथ ऑफ द आर्क है, ये भी मैंने 1 रखी, बराबर है। थोड़ा सा, ओहो, मैं थोड़ा आगे चला गया, बराबर, यहां तक जाना था मुझे। ठीक है, और अब ये जो एंगल दिख रहा है ना बनता हुआ 57 डिग्री का, तो देखो आप एक थ्रेड रख के मेजर कर सकते हो, ये तीनों लेंथ सेम हो गई, तो ये जो एंगल बनता है ना वो 1 रेडियन बनता है। समझे आप?
बराबर। तो अब आपको पता ना चला हो तो मैं बता दूं कि डिग्री एंड रेडियन के बीच का डिफरेंस क्या है। बराबर है। देखो छोटी छोटी चीजें समझ में आएगी ना तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है। डिग्री एंड रेडियन के बीच का की डिफरेंस समझा रहा हूं। टेल मी व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल? 2 pi r. 2 pi r. और अगर 2 पाई आर ऐसे नहीं, ऐसे बोलो ना 2 पाई आर, ऐसे बोलो तो एक मिनट हाँ बोलो तो 2 पाई आर। 2 pi r. पूरा राउंड जो है वो 2 पाई आर घुमा, बराबर। ओके नाउ सर्कल का रेडियस तो मैंने कितना रखा है? 1 रखा है ना। चलो तो R1 कर दो तो ये पूरा राउंड कितने का हुआ? 2 pi. ओके एक मिनट चिल्ड्रन, मैं थोड़ा आलसी इंसान ठहरा तो मैं थोड़ा कट कॉपी पेस्ट मान लेता हूं। हाँ यस हुई गवा। चलो हाँ अब इस पे काम करते हैं। तुम ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ तो कहां से शुरू करें, कहां से करें? यस चलो ये पूरा कितना हुआ? 2 पाई, बराबर। Yes. साथियों बराबर। Yes. ये उसका आधा कितना हुआ? Pi. शाबाश शाबाश। उसका भी आधा कितना हुआ? 1 by 2 pi. पाई बाय 2। क्या बात है। उसका भी आधा कितना हुआ? Pi by 4. Pi by 4. कुछ समझ में आया? कुछ ट्यूबलाइट हुई? नहीं? Yes sir. हाँ सर बोलो। रेडिएट आता है। हाँ बोलो। रेडियन की मतलब वैल्यू आ गई हमारे पास। हाँ तो मेरे कहने का मतलब कि रेडियन यानी क्या? सर्कमफरेंस का हाफ और ये। यस सो किड्स बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब भी हम बोलते हैं ना कि ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये कितना एंगल है? ये वाला पाई बाय 2 है। यस पाई बाय 2 क्या है? पाई बाय 2 is the length of the arc. Are you getting my point? Yes अब जरा देखना डिग्री मतलब क्या एंड रेडियन मतलब क्या। ओके सी डिग्री, व्हेन आई स्पीक डिग्री दैट मींस ये जो यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है, ये जो दो रेस है दे आर बोथ आर कोइंसिडेंट रेस। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको जो बनता है ना, ओके, रेस का एलिवेशन है, समझे आप? ओके दिस इज डिग्री, जो हम इतने सालों से पैदा हुए तब से डिग्री पढ़ रहे थे, बराबर। तो वो यहाँ देखते हैं, समझ गए। बट अगर मैं बोलूँ ना कि 90 डिग्री होगा तो यही, अगर मैं बोलूंगा ना पाई बाय 2 तो भी होगा तो यही। बट पाई बाय 2 मतलब क्या? ये आर्क लेंथ गिनी जाती है, देख रहे हो? Yes sir. ओके हाँ तो when I speak pi by 2 that means I am talking about the length of the arc, and when I speak 90 degree that means I am speaking about the elevation of the rays. मीनिंग समझ में आया? Yes sir. ओके चलो वैसे तो मैथ्स वालों को तो ये मीनिंग समझने के लिए एक पूरा क्लास जाएगा, बराबर है, ठीक है। बट फिजिक्स वालों को ये कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप बस मान के रखो कि एक रेडियन मतलब 57 डिग्री होता है, दैट्स इट। मैथ्स वालों को तो इसमें भी अंदर उतरना है, क्यों कैसे होता है, तो उसके भी कैलकुलेशन करने हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा याद कैसे रखेंगे यार इन सबको, ये बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? तो देखो थोड़ी बहुत फिर से, हाँ फिर से रट्टा नहीं मानना है, ओके, रट्टा बिल्कुल नहीं मानना है ना। चलो एक बार फिर से, इतना मिला के 2 पाई हुआ तो उसका आधा पाई हुआ, उसका आधा पाई बाय 2 हुआ। अल्टीमेटली ये लेंथ ऑफ द आर्क है, वो मुझे समझ में आ गया, बराबर है। तो अब देखो याद कैसे रखने का वो सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाता हूं। जी किड्स रेडी?
देखो ये पाई बाय 6 दिख रहा है, Yes. Yes. यहाँ पे एक और पाई बाय 6 दिख रहा है आपको, Yes. Yes. यहाँ पे एक और पाई बाय 6 दिख रहा है आपको, Yes. Yes. और यहाँ पे एक और पाई बाय 6 दिख रहा है आपको। Yes. हाँ, चलो अब ये पाई बाय 6 है तो ये 5 पाई बाय 6 है, ये कितना है 7 पाई बाय 6। 7 pi by 11. 11 pi. वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड वेरी गुड। पूरे सर्कल में 4 पाई बाय 6 वाली वैल्यू है कि नहीं? ओके अब इनको देखो, किसको देखो, इसको देखो, ये देखो 4 वैल्यू, 2 और ये 2। ओ ओ ओ ओ तमू बेटा गंदू ड्राइंग। यस हाँ, अब ये 4 वैल्यू को देखो। ओके कौन कौन सी 4? 1 2 3 4, ठीक है, एग्जैक्टली बीचों बीच में कट कर रही है। वो यू नो किसकी मूवी थी ऐसी, ऐसा मैं भूल गया, सलमान खान की मूवी थी। यस याद आया। 45 बराबर। ओके अब एक मिनट ना, 30 डिग्री का एक बार फिर से बोलूं बच्चा लोग, जरा देखो डिग्री में आपको जल्दी समझ में आएगा क्योंकि इतने सालों से पाला पड़ा है ना, इसलिए ये 30 डिग्री। ये कौन है? 150 डिग्री, शाबाश। बट 150 डिग्री से अच्छा मैं इसको ऐसा ना बोलूं 180 में से 30 कम, क्या बोलते हो? तो ये कौन है? 480 plus 30. वेरी गुड, 180 में से 30 ज्यादा, 180 प्लस 30। ये कौन? 360 minus 30. 360 माइनस 30। ओके और इसको आप 0 प्लस 30 भी बोल सकते हो, 360 प्लस 30 भी बोल सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, आता तो वही है, बराबर है। चलो अब ऐसे ही ये देखो, ये 45 डिग्री है बीच वाला, बराबर। ये भी 40, ये जो बीच वाला था ना वो भी 45 डिग्री है कहीं ना कहीं, ये भी 45 डिग्री है कहीं ना कहीं, और ये भी 45 डिग्री है कहीं ना कहीं, बराबर। बट ये 180 माइनस 45 135, ये 180 प्लस 45 225, और ये क्या 360 माइनस 45। बस तुम ऐसे याद रख सकते हो सारी वैल्यूज, बराबर। अब आता है खेल यहाँ पे किड्स। देखो अगर तुम चाहते हो कि जिसको भी जिसका गोल रखा है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो ऑब्वियसली आपको होम्योपैथी वाला डॉक्टर तो बनना नहीं होगा, है ना? बराबर ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना? Yes, sir. हाँ, तो मतलब आपकी ये सारी वैल्यूज बहुत मस्त वाली परफेक्ट होनी चाहिए। ओके जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ एक डेमो। ओह मुझे रेडियन वैल्यू याद रह गई, ठीक है। जैसे फिर से, हाँ ये 4 वैल्यू में क्या था, 1 2 3 4, यहाँ पे पाई बाय 6 था, यहाँ पाई बाय 4 आता था, बराबर। और यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 3 पाई बाय 3 पाई बाय 3 पाई बाय 3, और ये खुद कौन है, ये देखो ये पूरा 2 पाई है, बराबर। ये पूरा 2 पाई है, ये उसका आधा पाई, ये उसका भी आधा Pi by 2. पाई बाय 2, ये उसका भी आधा पाई बाय Pi by 4. बट आपको कैसे याद रखना है, एब्सोल्युटली योर चॉइस बच्चा लोग। ओके मैं आपको कितने सारे तरीके सिखाता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि आप जब भी अपनी साइंस की जर्नी बनाओ ना, तो यू डिस्कवर योर ओन वेज रादर देन अटेंडिंग धर्मेश बापूस कथा, समझे? बट आज आप कथा में नहीं हो, आई मस्ट से दैट यू आर इन सत्संग राइट नाउ। ओके साथ साथ में बोलते रहोगे तो तुम कथा में नहीं बैठे हो। हाँ तो देखो याद ऐसे रखना है आपको, पाई बाय 6। अच्छा मैं अभी हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, ओके दिखाई दिया हाइलाइटर? Yes. Yes. आप अपने चार्ट पे देखना, देखो इतना फ्लुएंसी है मेरे काम में। पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 6, पाई 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय, मैंने बोलने में गलती नहीं की ना, फिर से पाई 5 पाई बाय 4, सॉरी पाई 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 6, 2 पाई। ओके रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। कोई बोले 2 पाई बाय 3 किधर है, तो इधर है बाबा, इधर है 2 पाई बाय 3। इधर कौन है, 11 पाई बाय 6। इधर कौन है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन,
5/4। 5/6. हाँ नहीं बोलो सही, कोई बात नहीं, 5/4 है इधर। इधर कौन है? 7/6। 7/6, शाबाश। अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसका नाम पहला क्वाड्रेंट, इसका नाम दूसरा क्वाड्रेंट, इसका नाम तीसरा क्वाड्रेंट, इसका नाम चौथा क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद आया? Yes. Yes, sir. ये वही है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ ये वही है, क्योंकि ये जो है ना 2π, ये वाला 0.10 है, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके चलो 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 बोलो, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 1. 0, 1, शाबाश। सब लोग बोलो, बोली लगाओ यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रॉन्ग पड़ेगा, ठीक है। इसके -1 0 शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश। -10। इसके 0 -1, ठीक है, बराबर। चलो तो अब ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, बराबर है, ठीक है। अब अपने हाथ ऐसे रखो, हाँ ऐसे रखो ना अभी, ठीक है 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 ठीक है, बराबर। सबके दिख नहीं रहे, यस चलो बराबर। अब मुझे बताना, अगर मैं ऐसा करूं, सी आई एम टेकिंग माय राइट पाम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, दैट मींस मैं कौन सी एक्सिस दिखा रहा हूं? Y axis. नेगेटिव एक्स Negative. एक्सिस, ओके। और अगर मैं अपनी लेफ्ट पाम को राइट साइड ले जाऊं तो मैं कौन सी एक्सिस दिखा रहा हूं? X axis positive. नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके। और ये क्या है? एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो फिर से, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माय मिस्टेक, फिर से एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, positive x axis. Positive axis. Come on, start. X axis, X. negative x axis, ऐसे सीधा ले जाओ। पॉजिटिव x axis, लेफ्ट को लाओ, करेक्ट। फिर से, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? गोइंग अप क्या है? पॉजिटिव y axis, वेरी गुड। गोइंग डाउन क्या है? Negative Y axis. नेगेटिव y axis, यस। चलो फिर से एक बार खेलते हैं, रेडी? ओके स्टार्ट। पॉजिटिव y axis, पॉजिटिव x axis, पॉजिटिव x axis हिलाना है, यस। नेगेटिव x axis, नेगेटिव y axis, करेक्ट करेक्ट, वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन, वेरी स्मार्ट। अगर अपना क्लास होता ना तो मैं आपको लिटरली डांस करवाता, पता है इन सब चीजों पे, बट खैर ऑफलाइन तो है नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसमें भी तुमको डांस तो करवाऊंगा एक बार। ओके अब आते हैं क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो देखो, अब देखो, हाँ अब ये था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किड्स हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, ये था पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये था पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मेरा ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट, ये क्या बना? एक्स वाई, ओके। क्या बना मेरा? एक्स वाई, वाई, शाबाश। ये बन गया मेरा एक्स डैश वाई। क्यों एक्स डैश? Negative X. वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या बनेगा? X dash Y dash. शाबाश, आई लव यू चिल्ड्रन, बोलते रहो ये X Y dash. Y dash. अरे वाह क्या बात है, ठीक है। अच्छा अब देखो, जस्ट मुझे जल्दी आपको पूरा थोड़ा मैथ्स कवर करके देना है, इसलिए एक्स एक्सिस की फ्रेंडशिप जो है ना वो कॉस के साथ है। किसके साथ? cos. एंड वाई एक्सिस की फ्रेंडशिप जो है, वाई एक्सिस की, वो है किसके साथ? Sine. यस, बराबर है, ठीक है ना, बराबर है। तो ये कॉस एंड साइन, आपने वो सीरियल के बारे में सुना होगा ना, जब रावण ने द्रौपदी के साथ शादी की और फिर उनके बच्चे हुए और फिर महाभारत एंड रामायण हुआ, ऐसा ही है। ओके, साइन एंड कॉस, वो उसपे मत जाओ, भावनाओं में मत बहो, इधर आ जाओ वापस। यस यस यस, ओके। साइन कॉस आर द मेन प्लेयर्स, ठीक है। इन दोनों को तुम आयरन मैन समझ के चल सकते हो, बाकी सारे इनमें से बनते हैं, बना लो ऐसे जो भी।
सो दीज टू आर द मेन प्लेयर्स। और ये जो आर्मी है ना, ओके, आर्मी ऑफ फंक्शंस, ओके, देखो मैं इनके नाम अब साइन कॉस नहीं बोल रहा हूँ, नाउ दिस इज आर्मी ऑफ फंक्शंस। ओके, तो फंक्शंस आप समझोगे, साइन, कॉस, टेन, फिर क्या साइन का उल्टा, ओके। इज देयर एनीवन हियर जो इस फॉर्मूला से फेमिलियर नहीं है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा कोई? सबको पता है ना ये? Yes. ठीक है, चलो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ फिर। ओके, अब बच्चा लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है? जरा देखना, 0 π/6, ओहो ये क्या हो रहा है, π/3 एंड π/2 आ गया। ओ मैं 11th में आ गया, क्या बात है, साइन 0 0, साइन π/6, 1/2, साइन π/4, 1/2, टेबल पूरा आपको याद है ना बच्चा लोग? Yes, sir. कम ऑन से यस सर, Yes, sir. शाबाश। हाँ, मैं काम की बात पे आता हूँ, ठीक है? तो x मतलब x की फ्रेंडशिप cos एक्सिस के साथ, सॉरी cos की फ्रेंडशिप x एक्सिस के साथ है, एंड sin की फ्रेंडशिप Y. हाँ यस। तो किड्स अब क्या होगा पता है, ये जो है ना साइन और कॉस, हमने तो 10th स्टैंडर्ड में क्या है, पॉजिटिव टुकड़ा खाया था, सिर्फ इतना पॉजिटिव टुकड़ा, बट अब तो साइन कॉस हाफ भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, वो बराबर है। ओके, तो कॉस की फ्रेंडशिप किसके साथ है? यस, एक्स एक्सिस के साथ, बराबर है। तो जरा देखो, ये है पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, ओके, और ये साइन और ये कॉस, बराबर। अब मुझे बताओ, साइन पहले क्वाड्रेंट में y एक्सिस कैसी कनेक्ट होती है? y मतलब y है या y डैश है? साइन पहले में पॉजिटिव, दूसरे में Positive. पॉजिटिव, तीसरे में Negative. चौथे में Negative. नेगेटिव। वेरी गुड चिल्ड्रन, प्लीज आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आपके मन में कोई डाउट आए तो पूछो भी सही। ओके, चलो कॉस के बारे में, कॉस का कनेक्शन किसके साथ है? सर बेटा, सर you said कि 1 radian is equals to 57 degree. हाँ बेटा, How many radian can be there in a circle? यस बेटा, ठीक है। चलो अब 1 रेडियन मतलब आपकी बात में 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री बेटा, हाँ Yes. ठीक है। तो 57 बराबर, अब 57 को आप 6 बार करके देखो बेटा, 57 into 6 करो, कितना हुआ? 342. बराबर। और अपना सर्कल जो है वो 360 का होता है, तो 6.25 रेडियन उच्चक पकड़ लो। बात समझ में आई? Yes. हाँ, तो ये जो है ना 2 पाई मतलब वो 2 पाई मतलब कितना हुआ? 360. नो मेरे दोस्तों, तुम भूल गए, पाई को बुरा लग गया, हाय हाय हाय, पाई स्क्वायर का क्या होगा? ओके, पाई बोले तो 3.14, am I right? Yes. ओके, अब 2 पाई बोले तो 6.28. तो ये मुझे डाउट किसने पूछा था, मैं भूल गया। तो देखो बेटा, मैंने कहा था ना 6.25 ऊंचक, अब मैं उस चीज का आपको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बट अगर आप डाउट पूछोगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, समझे बेटा? मैंने आपका डाउट क्लियर किया? Yes sir. समझ में आ गई ना बात? Yes. है ना? तो अब खुद सोचना, हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं
कि ये एंगल कितना है 6.28, कितना खराब लगे, इससे अच्छा 2 पाई। हाँ, कितना सुनने में अच्छा लगता है 2 पाई। ये कितना है पाई, पाई बोले तो 180। ओके, अब पाई मतलब ये एंगल कितना है 3.14, मतलब इरेशनल नंबर। सो वो तो चलता ही रहेगा, इसीलिए बोलने में भी बहुत आसानी रहे, इसलिए हम कहते हैं ये पाई है, ये 2 पाई है, लाइक दैट। अंडरस्टूड? नाउ हाँ चलो, अभी मैं कहाँ पे था, साइन पे था, अब कॉस के बारे में बात करते हैं। चलो कॉस पहले में देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव बराबर है, और पहले और फोर्थ में प्लस रहेगा, क्या बोलते हो? यस। सेकंड एंड थर्ड नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव। अच्छा, मैंने सीनियर केजी में क्या सीखा था, साइन अपन कॉस क्या होता है? टेन। व्हाट इज प्लस अपन प्लस? प्लस माइनस शाबाश। साइन क्या उल्टा, क्या उल्टा कोसेक। कॉसेक। तो अब आपको कोसेक, सेक एंड कॉट उन सब के लिए भी यही रहेगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव ही रहेगा ना, वो थोड़ी नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? बट बच्चा लोग, ये सारी चीजें अगर आपको याद रखनी हो तो आप एक डायलॉग याद रख सकते हो, ऑलवेज टीसी, या तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। क्या स्कूल टू सिनेमा जाते हो या कॉलेज जाते हो? ऑब्वियसली सिनेमा ही जाते हो ना। ठीक है, मैंने कुछ बच्चों को ऐसा सिखाया था, आफ्टर स्कूल टू COC, जो तुम्हें अच्छा लगे याद रख सकते हो। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए हम 10th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ते भी थे। ओके, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, इधर कौन? ऑल नेगेटिव। 10 पॉजिटिव, और इधर कॉस पॉजिटिव। ओके, ऑल STC, S मतलब साइन, T मतलब 10, C मतलब कॉस। आप ऐसा कह सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो साइन की होम पेज है, थर्ड क्वाड्रेंट 10 की होम पेज है, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस की होम पेज है। ओके किड्स, आपके लिए बहुत हेवी डोज ना हो जाए, इसीलिए आज मैं आपको इतना ही यहां तक रखता हूं। और अब आपको ये पूरा टेबल याद रह गया दोस्तों? यस सर। स्टैंडर्ड वाला टेबल ही है। यस सर। हाँ, 10th स्टैंडर्ड वाला टेबल ही है। बट आप जब कल मेरे साथ सेशन अटेंड करो, ओके, तो कल आपको 1-2 सेशंस आपको मेरे साथ कंबाइंड अटेंड करने हैं, ताकि मैं आपको थोड़ा बेसिक मैथ सिखा सकूं। बराबर? अच्छा, अब मैं आपको थोड़े सिस्टम के बारे में समझा दूं बच्चा लोग। चलो, सबसे पहला होमवर्क, यू विल बी स्पीकिंग all the values fluently. 0, pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2, 2 pi by 3, 3 pi by 4, 5 pi by 6, pi, 7 pi by 6, 5 pi by 4, 4 pi by 3, 3 pi by 2, 5 pi by 3, 7 pi by 4, 11 pi by 6, 2 pi। अगर कोई बोले उल्टा बोलो तो याद होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। 2 pi 11 देखो 2 pi 11 pi by 6, फिर क्या 7 pi by 4, 5 pi by 3, 3 pi by 2, 4 pi by 3, 5 pi by 4, 7 pi by 6, pi। देख रहे हो? ओके, अभी यहाँ पे आया आधा, 5 pi by 6, 3 pi by 4, 2 pi by 3, pi by 2, pi by 3, pi by 4, pi by 6, और 0। तो उल्टा भी याद रहना चाहिए, फॉरवर्ड भी याद रहना चाहिए। कोई बोले खाली सेकंड क्वाड्रेंट बोलो, तो कोई बात नहीं, pi by 2, 2 pi by 3, 3 pi by 4, 5 pi by 6, pi याद होना चाहिए। जितना अच्छे से याद होगा ना, बराबर, उतना मजा आएगा पढ़ने का। ओके, बाकी ये पिज्जा, ये पूरा पिज्जा तुम्हें खाना है दोस्तों, ठीक है? ये जो पिज्जा है ना, बराबर, ओके, अब जैसे देखो ये कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की 12 स्लाइस बनती है, कितनी इस पिज्जा के अंदर? बराबर ना? अब ये देखो, ये 30 डिग्री मतलब कितना? 5 by 6। अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ, जरा समझना, ये 60 डिग्री है, खाली मैं रफ ड्राइंग में बता रहा हूँ, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री मतलब क्या? दो बार 30 डिग्री, 2 बार pi by 6 करो तो भी pi by 3 आता है ना। याद रखने के 1000 तरीके हैं, आपको जैसे याद रखना है रखो।
ओके बट अगर मैंने पूछा 2π/3 तो उंगली कौन से कॉर्नर में आनी चाहिए, थर्ड में या फोर्थ में? पोपट થઈ ગયો सेकंड में, सेकंड। हाँ इसीलिए रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग रखो, बराबर है। और वो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस के लिए जो कहते हैं ना वो प्रैक्टिस होती है, वो हर एक के हिसाब से प्रैक्टिस अलग अलग होती है। यू नो आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो कभी पढ़ते नहीं है फिर भी आईआईटी मुंबई आईआईटी में है, बराबर। एंड ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे वो बहुत पढ़ते ही रहते हैं और उनको 3-3 साल लग गए 12th क्लियर करने में। ठीक है, सब कुछ यू नो टेक्निक पे है। The whole game is of how smartly you are working. अच्छा किड्स, चलो अब मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि आज बताऊं या ओहो, ऑलराइट चलो नो प्रॉब्लम। हमारा इवैल्यूएशन कैसे होगा, बराबर। 12th वाले जितने लकी तुम नहीं हो, ठीक है, अब नए कितने भी कीड़े मकोड़े वायरस आ जाए, तुम्हारी एग्जाम 12th में होने वाली है। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये पहला साल मेरा ऐसा देखा मैंने कि बच्चों की एग्जाम ना हुई, और वो लकी बैच तुम्हारी थी 10th में, पर 12th में एग्जाम होगी। ओके, कोई ऐसा सोच के तो नहीं आया ना कि और मतलब 2 साल और आराम से निकल जाऊंगा, नहीं ना? नो सर। ओके चलो, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, मैथ्स के ऑप्शन में लगा लो बायोलॉजी, बराबर। अब आपको 100, 100 एंड 100, ठीक है, ये 3 एग्जाम देनी है, बराबर। 100, 100, 100, बराबर। साथ साथ में 40, 40, 40। ओके, ये आपका सीईटी है, ये आपके मतलब बोर्ड प्लस सीईटी। अब ये 300 में से आपके 60% काउंट हो गए। चलो 60% करो, कितना हुआ? बोलो बोलो बोलो। 180। और ये 40 40 40 कितना हुआ? 120। इसका 40% निकालो, कितना हुआ? बोलो। 48। ये दोनों को मिला लो, कितना हुआ? 228. ये 228 out of 228, that means you are in MSU मैकेनिकल या तो कंप्यूटर साइंस, ओके, या तो बड़ौदा मेडिकल कॉलेज अगर बायोलॉजी है तो, या तो बीजे मेडिकल कॉलेज, ये दो में से अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो, बराबर है। अब बात करते हैं कि वो जेई नीट कब देने का। हाँ, अगर मुझे लगता है सी किड्स, जेई नीट ऐसा नहीं होता कि 11th 12th साइंस लिया मतलब जेई नीट ऐसा होता नहीं है, नंबर 1, ठीक है। हाँ, बट मेरा गोल है कि मुझे बहुत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना डिग्री लेना है। ओके, तो ये एनआईटी क्या होता है जरा समझ लेते हैं। हर एक स्टेट के पास एक एनआईटी होता है, एंड इंडिया में थोड़े आईआईटीज है, ठीक है। तो एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे गुजरात का जो है वो सूरत में है, बराबर, ऐसे अगरतला में है, अलग अलग स्टेट के एक एक एनआईटी कॉलेज होते हैं, बराबर। तो एनआईटी क्या करती है, वो गुजरात स्टेट बोर्ड की या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या राजस्थान स्टेट बोर्ड उनकी एग्जाम को नहीं देखती है। वो बोलते हैं कि हम कॉमन मतलब इंडिया लेवल पे जो सिलेबस बनता है ना वो एग्जाम देखते हैं। तो जेई का पिक्चर यहाँ आता है, ओके। नीट का भी मैं आपको समझाता हूँ साथ में, बराबर। अब जेई में क्या होता है, 120 मैथ्स, 120 फिजिक्स एंड 120 केमिस्ट्री, बराबर, ओके। नीट में मैथ्स के बदले में बायो हो गया, बराबर। तो ये 360 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर तुम हर साल का कट ऑफ जो होता है वो 85 से 105 के बीच में रहता है। इतना कर दिया मतलब तुम मेन एग्जाम क्लियर कर लिया आपने। पहली एग्जाम जो होती है ना वो मेन एग्जाम होती है, ओके, फर्स्ट एग्जाम, ये आपने क्लियर कर लिया, बराबर। अब 85 से 105 में आए तो
बट अगर आपने, मैं कहता हूं कि 140 एंड 160 में आप आ गए ना, ये रेंज में, तो शायद आपका एसवी एनआईटी में चांस बन गया, सूरत एनआईटी में आपका चांस बन गया। समझ गए? अब ये 140 160 मतलब इसके आधे से भी कम है, देख रहे हो आप? तो आपको मैथ्स या तो बायो, ओके, अब मैथ्स एंड बायो ऐसे सब्जेक्ट है जो आप अपनी मर्जी से चुनते हो, है ना, तो वो तो एकदम स्ट्रांग होने चाहिए आपके। और साथ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट आपका ठीक ठाक हो ना, तो ये फिगर बन जाती है, देन यू आर एलिजिबल फॉर NITs ऑल्सो। ओके, अब मेन एग्जाम देने के बाद आप अगर क्वालिफाई होते हो तो देन यू आर अपियरिंग इन एडवांस लेवल एग्जाम, बराबर है। अब पूरे कंट्री में से 10,000 लोग जो होते हैं वो क्वालिफाई होते हैं और वो देते हैं मेन एग्जाम, एडवांस एग्जाम। एडवांस में क्वालिफाई होने के बाद अगर आप टॉप 1-2,000 में आते हो तो आपको अच्छी दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई IIT है, ओके, चेन्नई है, ये सारी अच्छी IITs में आपको एडमिशन मिलता है। किड्स, ये सब समझ में आ गया? यस। यहाँ कोई डाउट? नो। बराबर। अच्छा, और सेम मेडिकल में नीट के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है। बट अगर आपका श्योर है कि नहीं मुझे तो बड़ौदा में ही एडमिशन लेना है, मेरे को तो अहमदाबाद में ही लेना है, बराबर है, तो फिर आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बोर्ड की मार्कशीट ठीक करो, बराबर। अब जो स्टूडेंट्स को आर्किटेक्ट बनना है, जो स्टूडेंट्स को सिविल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी है, जिनको बहुत पता है कि वो मेरी कॉलेजेस तो गुजरात में कितनी सारी अवेलेबल है, देन यू डोंट नीड टू गो फॉर JEE। बड़ा इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मैं JEE की पढ़ाई भी नहीं करूंगा। पढ़ाई में क्या फर्क पड़ता है, जब मैं आपको बुकलेट्स और वो सब प्रोवाइड करूंगा तब आप देखना, जो लेवल है ना वो लेवल थोड़ा एडवांस लेवल का बन जाता है। जब आपको सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे ना, तो बच्चा लोग आपको 4-5 वीक पढ़ाने के बाद सारे टीचर्स आपको पूछेंगे, आर यू कीन फॉर स्टडिंग JEE, बराबर, JEE नीट। अगर आप कहोगे कि हाँ सर मेरे को नीट एंड JEE पे मेहनत करनी है, तो सर आपको अलग से, मतलब JEE नीट के सेशंस तो होंगे। वी डोंट वांट कि एक बच्चा जो खाली सिर्फ 12th पास करना चाहता है, एक बच्चा जो BSc माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लेना चाहता है, उनके लिए JEE नीट नहीं है कंपलसरी। समझे आप मेरी बात? ओके, देन यू डोंट नीड टू टेक दैट एक्स्ट्रा बर्डन। बट दोज हु आर रियली मतलब मेरा गोल तो है, यस, तो आप हमें पहले से, मतलब वो 4-5 वीक के टाइम में आप हमको सामने, मतलब हम भी आपको पूछेंगे एक बार, बराबर है, एंड फिर एक्स्ट्रा सेशंस आपके JEE नीट के शुरू हो जाएंगे। बट अभी तो आप जस्ट सिलेबस पढ़ना शुरू कर रहे हो, बराबर, ठीक है। चलो अब आते हैं डिसिप्लिनरी इश्यूज। ऑलवेज विश योर टीचर, नंबर 1, ठीक है। अमन सर आप हो यहाँ पे? ओके, आई थिंक सर। चिराग सर आप हो? यस सर। ओके, हाँ, चिराग सर, he is the one who will solve all your problems. ओके, आपको कभी कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, कभी आपको प्रैक्टिकल लैब में कोई आपका कोई डिवाइस काम नहीं कर रहा है, आपके कोई जर्नल सबमिशन बाकी रह गया है, आपका किसी टीचर के साथ कोई छोटा मोटा पंगा हो गया, कोई पनिशमेंट मिल गई, कुछ भी, ओके, तो he is your man, ओके, बराबर। एंड इफ यू आर राइट देन आई एम आल्सो योर मैन, डोंट वरी, ठीक है। बट सबसे पहली बात, हाँ, एंड डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्लास में आने का और खूब मस्ती करने का, बहुत सारी बातें करने की जब स्कूल चालू हो तो, ओके। डिसिप्लिन इन द सेंस कि जो होमवर्क आपको मिलता है वो आपको टाइम टू टाइम कर लेना है, ओके। जब आपकी ऑफलाइन स्कूल चालू होगी तो आप पहले, जैसे कि मैं आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का बताऊं शेड्यूल, तो आप स्कूल में आते ही सबसे पहले आप अपनी होमवर्क बुक रख दोगे वहां पे, ओके। अगर आपका वर्क इनकम्प्लीट है तो आप स्कूल आ ही नहीं पाओगे, क्योंकि देन इन दैट केस यू हैव टू टॉक टू, मतलब यू हैव टू ब्रिंग योर पेरेंट्स, ओके। यू विल, अब वहां पे आपने जैसे ही, मतलब यू विल सबमिट योर बुक, देन वन टीचर विल बी टेकिंग योर क्लास एंड अदर टीचर विल बी चेकिंग योर बुक्स, ओके। जैसे कि मान लो कि मैथ्स के बाद फिजिक्स का क्लास है, या तो फिजिक्स के बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्लास है, तो आप फिजिक्स के क्लास में गए तो केमिस्ट्री टीचर आपका होमवर्क चेक कर रहा होगा, और जैसे ही आप बाद में वाला क्लास होगा तो पहला टीचर आपका होमवर्क चेक कर रहा होगा, मतलब आपको बुक्स आपको पहले से दे देनी है,
ओके, तो एक होमवर्क बुक हो जो है वो आपको अलग से रखनी है, बराबर है। जब तक ऑनलाइन चल रहा है तब तक हम क्या करेंगे, गूगल क्लासरूम वाले लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ आजकल में, बराबर। अनदर थिंग इज कि होमवर्क में ना हमने देखा, आप इनफैक्ट आप लोग तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, मुझे आपसे सीखना चाहिए। टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग फुल लर्न कॉपी मारते हैं, बराबर है। एंड या मतलब इजी होता है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो हो जाता है, ठीक है। सो होमवर्क जो है वो मोस्ट ऑफ द होमवर्क, जैसे मैंने अभी मेरा पहला होमवर्क मैंने आपको दे रहा हूँ, एंड यू विल मेक अ वीडियो ऑफ इट, ओके। तो आप अपनी अपनी यूट्यूब पे चैनल बना लो, बराबर। वी डोंट वांट एनीथिंग, मतलब मैं तो नॉर्मली रिटन वर्क बहुत कम प्रीफर करता हूँ, आई प्रीफर द वीडियो वर्क। ओके, वीडियो में क्या होता है कि आप बोलोगे, कैसे बोलोगे, क्या सोचते हो, आपके एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है कि तुमने कितना मेहनत किया है, ठीक है। तो आज मुझे आप अपना पहला वीडियो रेडी रखना, ठीक है। मैं चैनल पे जैसे ही असाइनमेंट पोस्ट करूं, आप तुरंत पोस्ट कर देना कि हाउ यू हैव लर्नड दोज वैल्यूज, इट्स नॉट लाइक दिस 0 5 6 5 4 5 3 2 5 3 5 4 5 6 5, ऐसे नहीं बोलना है, ओके। थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ, थोड़े इमोशंस के साथ, 0 5/6 5/4 5/3 5/2, कहीं से देख के नहीं, ऐसा नहीं, मतलब सामने दीवार पे लिखा है और बोल रहे हैं 0 5/6 5/4 5/3, थोड़ा वो दिखना चाहिए आपका सिंसियर एफर्ट्स कि आपने ये मेहनत की है। This video will be of very maybe possible of 1 minute or 1.5 minute, not more than that, okay। बट मैं आपको इसके बाद एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं कितने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा कि जितना मैंने आपको मैथ सिखाया होगा, बराबर, ओके। और अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूछूंगा तो मुझे पता चल ही जाएगा। अनदर थिंग इज हम क्लासरूम स्प्लिट करेंगे, ओके। कई बार जैसे मैथ्स का क्लास यहाँ चल रहा है, ओके, मैं आपको अभी बताता हूँ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, ओके। आप रूम में जाओगे बायोलॉजी के एंड वापस आ जाओगे। देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। चिराग सर आप हो ना? यस सर। ओके, देखो मैं बायो का रूम बना रहा हूँ, बराबर है। एंड यहाँ पे लिखा है 11 बायो, बराबर। चलो ये रूम मैंने ओपन किया, बायोलॉजी स्टूडेंट्स आपको रूम दिखा? यस। ज्वाइन करो वो रूम। ओके, तो वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है वो बायोलॉजी वाले रूम में चले गए, बराबर। ऐसे आपको अपना रूम सिलेक्ट करना है। कोई कोई टाइम क्या होगा कि जैसे नॉर्मली हम मीटिंग, मतलब मैंने 2 अलग अलग आईडी रखे हैं, बराबर है। बट मैथ्स बायो के लिए जब मैथ्स चलेगा तब बायो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। तो दूसरी टीचर जो है वो वहां पे, मतलब जो को होस्ट होगी, जैसे शोभिता मैम विल बी टेकिंग केयर ऑफ बायोलॉजी, तो वो मीटिंग वहां पे भी चलेगी। टाइम आप दोनों का सेम रहेगा ऑनलाइन में, समझे बच्चा लोग? ओके, अब मैं रूम क्लोज कर रहा हूं ताकि वो लोग वापस यहाँ आ जाए। यस, ओके, अभी वापस वो लोग आ जाएंगे यहाँ पे। यस, आ गए वहां से यहाँ पे, बराबर। यस। प्रोसेस समझ में आ गई आपको? यस। यस सर। ओके, तो हाँ, अब जब क्लास के टाइमिंग सेम रहे तो बायोलॉजी वाले को तुरंत बायोलॉजी वाले रूम में चले जाना है। जैसे आप स्कूल में आते हो तो कैसा, ओ ये मैथ्स वाला रूम है, ये बायो वाला रूम है, सेम यहाँ पे मैं 11 बायो वाला रूम क्रिएट किया होगा। बट कोई कोई दिन ऐसा हो सकता है कि 4 क्लास एक साथ हो जाए, जैसे 11th बायो, 12th बायो, 11th मैथ्स, 12th मैथ्स, तो सबको अपने अपने रूम में चले जाना है मीटिंग में आते ही, रूम्स देख के। यस सर। कि ओ मेरा अभी ये लेक्चर है तो मुझे इस रूम में जाना है, बराबर। हाँ, अब डिसिप्लिन लाइफ की बात करते हैं फिर से। होमवर्क में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने आपको दे दिया कि भाई मंडे चाहिए तो चाहिए। ऑलवेज हैव हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर टीचर, ओके। मैंने है ना 4 सब्जेक्ट टीचर से अच्छा, मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 4 अच्छे इंसान ढूंढे हैं टीम में,
क्योंकि टीचर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट टीचर तो मुझे मतलब जितने चाहो उतने मिल जाएंगे। सो पीयूष सर, अमन सर, सबके साथ दे आर वेरी यंग टीचर्स एंड बी वेरी फ्रेंडली विद देम। अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई रीजन से आप जिस दिन आपको टीचर होमवर्क दे रहा है ना और आपको लग रहा है ओह आई एम गोइंग थ्रू सो मेनी इश्यूज, टेल द टीचर वेरी पोलाइटली, सर आप होमवर्क थर्सडे मांग रहे हो, उसके बदले में होमवर्क मंडे दूं आपको, एंड आई अश्योर यू दैट टीचर विल नेवर से नो फॉर दैट, बट फिर अगर आपने मंडे होमवर्क नहीं दिया ना, देन यू विल बी इन द ब्लैक लिस्ट। ओके, सो आप जो भी कमिटमेंट देते हो ना, फुलफिल करो, बराबर है। होमवर्क से कभी पीछे हट ना लो। ओके, धीरे 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 धीरे, अभी कल से तो आपका इनफैक्ट फुल फ्लेज टाइम टेबल, अभी फुल फ्लेज टाइम टेबल तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, बराबर है, नहीं तो आपका रोज का 6 घंटे का पढ़ाई हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ 2 सेशंस डाल रहा हूँ रोज के। ओके, whenever you come, wish your teacher. We will have some common events also, थोड़ी बहुत वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। फन इवेंट्स वी आर प्लानिंग मंथली बेसिस, समथिंग लाइक दैट। हाँ, अब इसके अलावा आपको कुछ पूछना है? और हाँ, एक और बात, 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद आपकी पेरेंट्स मीटिंग होगी। आप जैसे 10th स्टैंडर्ड में पेरेंट्स मीटिंग करते थे ना, ऐसी पेरेंट्स मीटिंग नहीं होगी। सब्जेक्ट टीचर एंड योर पेरेंट्स, देयर विल बी 1-to-1 पेरेंट मीटिंग, पेरेंट इंटरेक्शन, ठीक है। और प्लीज आपको भी थोड़ा अपने पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि मार्क्स 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 मार्क्स, ये बहुत हर एक बच्चे का कैलिबर जो है ना, वो मार्क्स से जज नहीं किया जाता, ठीक है। आई अश्योर यू ईच वन ऑफ यू विल बी सक्सेसफुल इन योर 12th साइंस जर्नी। ओके, यही देख के हमने लिया है, बराबर है। बट मार्क्स के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वेदर यू आर एंजॉइंग लर्निंग विथ अस और नॉट, वेदर यू आर एंजॉइंग दोस सब्जेक्ट्स और नॉट। Okay, journey is more important than the destination. Okay, so be very friendly with all the teachers. All the teachers are also friendly. Then now, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, नए घर में रहने जाएंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, और हमारे लिए भी ऐसा हमें बहुत खुशी होती है कि इतने सारे बच्चे आए हैं, उनको हम एकदम जबरदस्त, आज जो परफॉर्मेंस आपने मुझे दिया ना, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि आप मेरे टीम मेंबर्स को भी यही परफॉर्मेंस दो। ओके, इतना लाइवली वर्क। ओके, ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना आपसे? यस यस यस। ओके, ठीक है। अब आपको टाइम टेबल शायद मेरे ख्याल से नहीं मिला है। ओके, गूगल क्लासरूम लिंक्स नहीं मिली है आपको, वो आपको आजकल में मिल जाएगी। बच्चा लोग, सब लोग अपना अपना ईमेल आईडी, आज है ना काफी सारे गेस्ट यूजर्स है यहाँ पे। ओके, एंड सिक्योरिटी इज अ बिग कंसर्न इन Zoom मीटिंग। ओके, आपको तो पता ही है लास्ट ईयर क्या हुआ था, है ना। सो यू विल बी रजिस्टरिंग, मतलब जब भी आप Zoom ज्वाइन करते हो ना मीटिंग, तो यू हैव टू लॉग इन थ्रू योर रजिस्टर ईमेल आईडी विच कंटेन्स योर नेम एंड सरनेम। सो प्लीज जीमेल का वो प्रॉपर आईडी, ऐसा नहीं कि लिंक पे क्लिक करके आ गए, बराबर है। आपके Zoom में वो आपका रजिस्टर्ड आईडी यूजर होना चाहिए। ओके, ताकि मैं जब मीटिंग का, ये नो डाउट ये मीटिंग तो रिकॉर्डेड मीटिंग होती है, बट क्लाउड रिकॉर्डिंग भी होते हैं मीटिंग के, बट आपके लॉग्स बनते हैं वहां पे। ओके, तो वो लॉग्स में आप किस आईपी एड्रेस से लॉग इन हुए हो ना, वो तक आता है, बराबर है। सो 1-2 मीटिंग तक ठीक है, 1-2-3 सेशन, उसके बाद तब तक चिराग सर। Yes, sir. You all will submit your email address. ये मैं आपको चिराग सर का व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, ठीक है। चिराग सर आपका व्हाट्सएप नंबर बोलो ना। हाँ, 9033 प्लीज नोट डाउन ना किड्स। 9033 988782। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 9033 988782। चेक करो, मैंने चैट में भी दिया है आपको, 9033988782। ओके, यू विल सेंड योर ईमेल एड्रेस ऑन दिस नंबर, एंड आपको उसी ईमेल एड्रेस से अपने Zoom डिवाइस के थ्रू लॉगिन करना है। ओके, आज आपने जहां से भी लॉगिन किया, मैंने सबको अलाउ किया, बराबर।
बट नेक्स्ट क्लास में आप अपना ऑथेंटिकेट मतलब अब मैं अपने उसमें CSV फाइल बना के डालूंगा, सो यू विल बिकम अ ऑथेंटिकेटेड यूजर ऑफ दिस 11th स्टैंडर्ड क्लासरूम। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं कि मम्मी ला तेरा फोन, मैं तेरे में से अटेंड कर लेती हूँ, पापा लाओ आपका फोन दे दो, ये नहीं हो सकता। आपको किसी का भी फोन यूज कर सकते हो, बट आपको उसके जूम में, वो जो जूम ऐप में आपको अपना लॉगिन चाहिए। ओके, दीज आर द सिक्योरिटी कंसर्न्स, राइट? चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके कोई क्वेरीज, कुछ भी? हाँ, अगर कहीं पे भी तुम स्टक्ड अप हो, बराबर, मान लो कि धर्मेश सर मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, बराबर, तो आप धर्मेश सर से बात करो कि सर मैं ये इश्यूज आपके साथ फेस कर रही हूँ, मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो व्हाट धर्मेश सर विल डू, क्लास खत्म हो जाएगा, बाद में थोड़ा 5-10 मिनट का सीटिंग आपके साथ एक्स्ट्रा देंगे, जरूरत पड़ने पे 1 घंटा भी आपके साथ बैठेंगे। ओके, वो धर्मेश सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैथ्स में बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स, बराबर है? ठीक है, अब किसी को 91.1 सुनना अच्छा लगता है, किसी को 98.3 सुनना अच्छा लगता है, वो मतलब दोनों जगह पे काम तो एक ही हो रहा है ना? सो ऐसा कोई भी इश्यू आ जाए छोटा मोटा, मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी टीम मेंबर, दे आर द हाईली डिसेंट पीपल, वो लोग अपना वेल कल्चर्ड, बिहेव्ड एंड सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। बट हमारे स्कूल में मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंट, पीपल हैव वो वर्स्ट एटीट्यूड में अगर किसी ने आके बात किया ना, तो ना आपको प्रिंसिपल मैम टॉलरेट करेगी, ना मैं टॉलरेट करूंगा, ना चिराग सर, ना भावेश सर, ना कोई सब्जेक्ट टीचर। अब हमने क्या देखा पता है, लास्ट टाइम पेरेंट मीटिंग में हमारे कुछ, चिराग सर क्या था, कोई प्रैक्टिकल के मैम थे नहीं, बराबर है, मैम की हेल्थ के मतलब सीरियस इश्यू थे, तो एक प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। अब पेरेंट आते हैं और पता है क्या बोलते हैं, जाके इंग्लिश टीचर को बोलते हैं, मैथ्स टीचर को बोलते हैं, फिजिक्स टीचर को बोलते हैं, केमिस्ट्री टीचर को नहीं बोलते, बराबर। अब अगर प्रॉब्लम है, मान लो मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करना है? मैथ्स टीचर को ही करना है, बराबर है। अगर आपको फिजिक्स में कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, then you have to negotiate with the physics teacher. If you will come and complain me, सर फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं फिजिक्स वाले को बोलूंगा कि वो मतलब क्या गीता सीता बोल रही थी कि समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या पढ़ाते हो? ये नहीं होता। आप एक चैनल में जाओ, try to sort out all your doubts, difficulties. अगर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है, तो टाइम ले लो फैकल्टी से कि सर मेरे इतने सारे क्वेश्चन है क्लास के बाद, आप मुझे आज आप टाइम दे दोगे? सर जरूर से आपके क्वेश्चन सोल्व करा देंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स आपके पास जब ना सोल्व हो, तब देन यू कैन कम टू मी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. Yes. We have to be like a family, and the happiness has to be multiplied like anything, बराबर? चलो, तो कल से एक और सेशन में आपका लूंगा, थोड़ा सा मुझे और कराना है, तो बराबर है। नाउ ऑल मतलब आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। चिराग सर आज टाइम टेबल पोस्ट करना है। ओके सर, बराबर, आपको अब कल से आपको टाइम टेबल के हिसाब से आपको करते रहना है, ठीक है। एंड जब किड्स होमवर्क सबमिशन में जब आप PDF बनाते हो ना, तो प्लीज प्रॉपर फोटोग्राफ खींचो, ओके। इसलिए मैंने आपको ब्लैंक बुकलेट्स मंगवाई है मैथ्स बायो के लिए, ओके। ब्लैंक बुक में आप जितना काम करोगे ना, उसमें आपका प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, एंड उसमें फोटोग्राफ्स भी प्रॉपर आएंगे, और वो आप सबमिट भी अच्छे से कर पाओगे। जैसे अभी देखो 12th वालों का बताऊं मैं आपको, ओके। खुदा ना करे, मतलब ऊपर वाला नहीं चाहे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। अब ये 12th वालों का एग्जाम कैंसिल हो गया, बराबर है, तो उनकी मार्कशीट कौन बनाएगा? स्कूल, ठीक है। अगर एक बच्चे ने स्कूल को रेगुलरली हैरेस किया है, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं तो आप सभी को, बराबर है, एंड इट्स अ जेंटलमैन प्रॉमिस, आप अपने सीनियर्स को पूछ सकते हो, ओके। मैंने बच्चे से पूछे, बोल तेरे कितने मार्क्स चाहिए प्रैक्टिकल में? वो बोला ना 48, तो मैंने 48 दिए हैं, और सारे सब्जेक्ट में दिए हैं, ऐसा नहीं एक में। 50 में से बच्चा बोलता है ना सर 40 अब चाहिए, कुछ भी करे, तो हर एक बच्चे को 40 अब प्रैक्टिकल में मार्क्स दिए हैं, उसको पूछ के मार्क्स दिए हैं, बोर्ड के मार्क्स,
आप समझ रहे हो? ओके, तो अगर आप डिसिप्लिन में हो और आपका कोई किसी टीचर के साथ कोई पंगा नहीं है एंड यू आर कंप्लीटली अ सोशल एनिमल, तो वी विल ग्लेड टू। अब सारे बच्चों को पूछना 11th में कितने फ्लाइंग कलर्स से पास होते हैं। ओके, 11th हम बच्चों को क्या है एकदम अच्छा खासा नेट प्रैक्टिस जैसा करवाते हैं एंड देन वो एक चीयर अप मोमेंटम के साथ हम लोग 12th में एंटर होते हैं। एग्जाम्स और ये सब आते रहेंगे, बराबर है। आपको एग्जाम शेड्यूल मिल जाएगा, डिटेल एग्जाम शेड्यूल नेक्स्ट मंथ से। हर मंथ में हर वीक में एक ही एग्जाम होगी। एक बार मैथ्स की बायो की हुई तो नेक्स्ट वीक में फिजिक्स आएगा, फिर नेक्स्ट वीक में केमिस्ट्री आएगा, उसके नेक्स्ट वीक में सारे आएंगे एक साथ। ओके, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सीईटी। स्टार्टिंग में शायद सीईटी रहे या तो जेईई नीट बन के आएगा। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एनी क्वेरीज किड्स? कुछ भी पूछना है? हाँ विशाल पाठक, बेटा बोलो। सर हमको होमवर्क भी ब्लैंक बनानी है। बनाओ तो अच्छा है बेटा, लाइनिंग वाले में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मैथ्स बायो में तो आई विल प्रेफर कि आपकी ब्लैंक बुक हो। थैंक यू सर। ओके, और कोई बच्चा? बहुत 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 लाइवली रहना, जैसा आज आप मेरे साथ थे, ठीक है? इससे भी ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, 11th 12th पढ़ाई ठीक है, वो सब है, साथ साथ में मस्ती भी इतनी ही करनी है, क्योंकि कोई तुम्हें मार्क्स से याद नहीं रखेंगे, बट जो तुमने मस्ती की होगी ना उससे जरूर याद रखेंगे। ओके, मैंने भी अपने स्कूल के वॉशरूम में बम फोड़े थे और आज भी हमें टीचर याद करते हैं, कि ये वो यस यस। सो हाँ, तुम्हें बम फोड़ने का कोई नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, याद रखना, बराबर। सो अच्छे से रहना है, कहने का मतलब, ठीक है? चलो, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? नो सर। ओके देन किड्स, कल से टाइम टेबल के हिसाब से मिलते हैं, बराबर? यस सर, बाय बाय, गुड डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय सर। बाय सर। Bye, sir.